morning, students. Hope all of you are well at your home. Today we are going to start poetry. In the previous lectures, I have told you about poetry, its definition and its kinds. As you know, this world is full of beauty, and a poet is a person who unveils this beauty before us. ये दुनिया सुंदरता से भरी हुई है और कवि एक ऐसा व्यक्ति होता है जो इस सुंदरता को हमारे सामने खोलता है. He has the power of imagination. कल्पना शक्ति से वह एक तुच्छ और मामूली से टॉपिक पर भी बहुत अच्छी लाइंस लिख देता है, बहुत अच्छी पॉइंट्स लिख देता है, उसके महत्व को बहुत बढ़ा देता है. So there are 10 points in your syllabus, and the first point is character of a happy life, composed by Sir Henry Wotton. Before I start this point, I would like to tell you about the poet Sir Henry Wotton. Sir Henry Wotton is a famous English poet. He was born in United Kingdom in 1568 and he died in 1639. He was not only a poet, he was a diplomat and politician also. He was elected member of parliament in 1614 and 1625, means 2 times. Member of parliament, in short you say MP. You know, as Mr. Sanjeev Balyan is MP of Muzaffarnagar, he was elected MP. Sir is written before his name. Do you know why? Because he was awarded with the title of knighthood. उनको नाइटहुड की उपाधि से नवाजा गया था, इसीलिए जिसको नाइटहुड की उपाधि मिल जाती है तो वो नाम से पहले सर लगाता है. In India also Rabindranath Tagore was also awarded this knighthood title. But after the massacre of Jallianwala in 1919, he returned his title of knighthood. Okay. Now come to the point. Sir Henry Wotton wrote this poem, Character of a Happy Life, and in this poem he tells us how to make our life full of happiness. Students, as all of you want to be happy in life, everybody, this is human nature. हर कोई चाहता है खुश रहना. The question arises here, खुश रहने का क्या तरीका है? How can we be happy in our life? तो सर हेनरी वोटन ने यहां पर हमें कुछ उपदेशात्मक तरीके से, डिडक्टिक रूप में, दिस इज द डिडक्टिक पॉइंट, उपदेशात्मक, हमें उसने बताया है तरीका हम कैसे अपने आप को खुश रख सकते हैं. वी हैव टू डेवलप अ कैरेक्टर. हम एक ऐसा चरित्र का निर्माण करना है जिसमें हम हमेशा सत्य का पालन करें. वी शुड ऑलवेज बी ऑनेस्ट इन आवर लाइफ. वी शुड ऑलवेज follow the conscience, inner soul, and we should pray to God early and late, so and so. So in this poem you will read all the qualities which are necessary to make our life happy. So let's start this poem. 6 stanzas in this poem, and each stanza has 4 lines. The stanza is known as quatrain. वो स्टेंजा जिसमें 4 लाइन होती हैं उसको क्वाट्रेन कहा जाता है, हिंदी में चौपाया कहते हैं. Thus this is the set of 6 quatrains. So let's read the first stanza here. How happy is he born or taught that serveth not another's will, whose armor is his honest thought and simple truth his utmost skill. How happy is he. वह कितना खुश है, बोर्न यानी जन्म से, और टॉट या जिसने सीखा है. क्या सीखा है? दैट मीन्स की सर्विथ नॉट अनदर्स विल. सर्विथ
ये TH पुरानी इंग्लिश में लगता था, अभी ओल्ड इंग्लिश में, नाउ न्यू इंग्लिश में इसके लिए S लगाते हैं। इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सर्व्स, ताहे की साउंड निकलेगी, कि सेवा करता है, नॉट मैंने नहीं, अदर्स विल, दूसरों की इच्छाओं की। यानी वह व्यक्ति कितना खुश है जिसने जन्म से या शिक्षा के द्वारा यह सीखा है कि दूसरों की इच्छाओं का दास नहीं बनना है। Whose armor is his honest thought? स्टूडेंट्स, आर्मर को देखिए, इन हिंदी कवच। ये कवच सैनिकों के द्वारा युद्ध स्थल में पहना जाता था दुश्मन के वार से खुद को सेफ रखने के लिए। तो whose armor is, जिसका कवच है, his honest thought, उसके ईमानदारी वाले विचार, अर्थात ईमानदारी वाले विचारों से ही वो अपनी रक्षा करता है। जैसे एक सैनिक कवच से अपनी रक्षा करता है, इन द सेम वे वह व्यक्ति ईमानदारी वाले विचारों के द्वारा अपनी रक्षा करता है। एंड सिंपल ट्रुथ हिज एटमोस्ट स्किल, और साधारण सत्य ही जिसका संपूर्ण कौशल है। तो स्टूडेंट्स, इन दीज 4 लाइन्स ये क्लियर हुआ कि वह आदमी हमेशा खुश रहेगा जिसने जन्म से या फिर शिक्षा ग्रहण करके ये सीखा है कि दूसरे लोगों की इच्छाओं का दास नहीं बनना, और हमेशा ईमानदारी वाले विचारों को अपना कवच बनाना है, और हमेशा साधारण सत्य को ही अपना संपूर्ण कौशल बनाना है। स्टूडेंट, वैसे तो पोइट्री ही ब्यूटी का नाम है, और उसमें फिर ब्यूटी और बढ़ जाती है फिगर्स ऑफ स्पीच से। फिगर्स ऑफ स्पीच पे मैंने आपको डिटेल में लेक्चर दिया है, तो यहां पर आप पहचानिए कि विच फिगर स्पीच हैज बीन यूज्ड इन दीज 4 लाइन्स। नाउ लेट मी टेल यू, हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट। इसमें ईमानदारी वाले विचारों की तुलना की गई है कवच से, और तुलना वाला आपको पता है या तो सिमिली होता है या मेटाफर। सिमिली तब होता है जब इसमें सो, लाइक या एज का यूज होता है, लेकिन इसमें सो लाइक एज नहीं है, तो यहां पर मेटाफर का यूज हुआ है। Whose patience not his masters are. Patience means भावनाएं, ये जुनून, यानी जो जुनून को अपना मास्टर नहीं बनाता, यानी जुनून को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। Whose soul is still prepared for death, जिसकी आत्मा सदैव मृत्यु के लिए तैयार रहती है, अर्थात उसने मृत्यु के बाद के जीवन के लिए तैयारी की हुई है, तो इसलिए उसकी आत्मा मृत्यु से नहीं डरती है। Untied unto the world with care, इस संसार की चिंताओं से वह बंधा हुआ नहीं है। Untied, टाइड मींस बंधना, और अन लगा दिया तो बंधा हुआ नहीं है। ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर ब्रीड, प्रिंसली लव यानी राजकुमारों का प्रेम, अर्थात बड़े लोगों का प्रेम या सम्मान पाने की, और वल्गर ब्रीड यानी मामूली व्यक्तियों की निंदा, अर्थात जो साधारण व्यक्ति हैं, सामान्य व्यक्ति हैं, उनकी निंदा की चिंताओं से वह बिल्कुल मुक्त है। फिर से इसको समझ लीजिए कि भावनाओं को उसने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, और उसकी आत्मा सदैव मृत्यु के लिए तैयार रहती है। इंसान को सबसे बड़ा दुख मृत्यु का होता है, लेकिन चूंकि उसको मृत्यु से डर नहीं लगता, तो इसलिए वह दुखी नहीं है, वह खुश है। इन द सेम वे संसार की जितनी भी चिंताएं हैं, जैसे कि बड़े उच्च लोगों का प्रेम प्राप्त करना या उनका सम्मान प्राप्त करना, या तुच्छ और मामूली लोगों की निंदा से बचना, इन सब चीजों से वह बिल्कुल मुक्त है। में भी एक फिगर स्पीच यूज किया गया है, Whose patience not his masters are, यानी जिसकी स्वामी उसकी भावनाएं नहीं है। तो यहां पर भावनाओं को एक व्यक्ति के रूप में दिखाया जा रहा है। तो here is personification. Stanza, who had his life from rumors freed, whose conscience is his strong retreat, whose state can neither flatters feed nor ruins make oppressors great. Had means has, who has his life, जो अपने जीवन को रखता है। पहले फ्रीड पढ़ा जाएगा, फ्रीड मीन्स मुक्त, फ्रॉम रूमर्स अफवाहों से, अर्थात उसका जीवन अफवाहों से मुक्त है, अफवाहों का उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। Whose conscience is his strong retreat, conscience means अंतरात्मा या अंतःकरण, जिसका अंतःकरण ही उसकी मजबूत रिट्रीट यानी शरण स्थल है। रिट्रीट एक ऐसा स्थान होता है जहां पे शरण ली जाती है। तो ये व्यक्ति जब भी कभी मुसीबत में होता है तो ये हमेशा अपने अंतःकरण से कार्य करता है, और वही इसके लिए शरण स्थल होती है। Whose state can neither flatters feed, जिसकी स्थिति ऐसी है कि कोई खुशामद करने वाला या चापलूस उसको फीड नहीं कर सकता, अर्थात
उसके ऊपर प्रभाव नहीं छोड़ सकता। यानी वह खुशामद पाकर के या खुशामद से अभिमानी नहीं हो जाता, उसके अंदर कोई अभिमान की भावना नहीं आ जाती, क्योंकि वो चापलूसी कराता ही नहीं है, खुशामद कराता ही नहीं है। नॉर ruins मेक ऑपरेशंस ग्रेट। ruins मीन्स बर्बाद करना, ऑपरेशंस मीन्स अत्याचारी, यानी उसको बर्बाद करके कोई अत्याचारी महान बन जाएगा, उसकी स्थिति ऐसी भी नहीं है। अर्थात वह अपने विनाश पर इतना दुखी नहीं होता कि उसके शत्रु उससे प्रसन्न हो सके। तो इन दिस वे दिस वाज द थर्ड स्टेंजा, एंड इन द सेकेंड लाइन whose conscience is strongly treated, again there is a figures of speech and that is metaphor, क्योंकि यहां पर अंतरात्मा या अंतःकरण की जो तुलना है वो एक मजबूत शरण स्थल से की गई है, और मेटाफर में कंपैरिजन की जाती है तो भिन्न भिन्न वस्तुओं के बीच में जिनमें कम से कम एक बात समान होती है और इसमें सोलाइक गैस का यूज नहीं होता है। हियर इज आल्सो मेटाफर। स्टूडेंट्स, आप इसमें राइमिंग वर्ड्स भी देखते चलेंगे। फ्रीड एंड फीड, रिट्रीट और ग्रेट, इनमें सेम सेम साउंड है, तो ये राइमिंग वर्ड्स है। ओके, कम टू द फोर्थ क्वाड्रेंट। हु एनवाइज नन, जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता। एनवाई मीन्स जेलसी। हुम चांस डथ रेज, जिसको कि अवसर ने, अवसर मीन्स भाग्य ने ऊंचा उठा दिया है। हम लोगों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अगर हम अपने साथियों को ऊंचा उठते हुए देख लेते हैं, भाग्य, उनका भाग्य चमकता हुआ देख लेते हैं, तो हमें ईर्ष्या होने लगती है। लेकिन इस व्यक्ति की ऐसी स्थिति है कि वह ईर्ष्या नहीं करता। नो वाइस, और ना ही उसके अंदर कोई बुराई है। वाइस मीन्स बुराई। हु नेवर अंडरस्टूड हाउ डीपेस्ट वुंड्स आर गिवन विद प्रेज, और जो इस बात को समझता नहीं है कि प्रशंसा से कितने गहरे जख्म हो जाते हैं। डीपेस्ट मीन्स गहरे, वुंड्स मीन्स घाव या जख्म, गिवन मैंने हो जाते हैं या दे दिए जाते हैं विद प्रेज मैंने प्रशंसा से, अर्थात वह किसी से प्रशंसा भी नहीं करवाता है। प्रशंसा एक तरह का जख्म होता है। अगर हम किसी की प्रशंसा कर देते हैं तो वह उस इंसान के अंदर अहंकार की भावना आ जाती है। तो इसलिए प्रशंसा को घाव की तुलना घाव से की गई, प्रशंसा को घाव की तरह से बताया गया है। तो ये इस घाव से अनभिज्ञ है, क्योंकि एक चीज से प्रशंसा नहीं करवाता है। नो रूल्स ऑफ स्टेट, यह जो स्टेट है यानी सरकार है उसके नियमों का पालन करे या न करे, बट रूल्स ऑफ गुड, बल्कि अच्छाई के नियमों का पालन करता है। तो राज्य के नियमों का तो पालन करना ही चाहिए, लेकिन अच्छाई के नियमों का पालन सर्वोपरि रखना चाहिए, उनका पालन सर्वोपरि करना चाहिए। ओके, दिस वाज द फोर्थ स्टेंजा। नाउ कम टू द फिफ्थ वन। इट एन अर्ली प्रे, जो ईश्वर की प्रार्थना करता है देर से या सवेर से, यानी एवरी टाइम वह ईश्वर की प्रार्थना पे बिलीव रखता है, ईश्वर की पूजा करता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट्स टू लैंड, अधिकतर किस लिए, उसकी कृपा प्राप्त करने के लिए। ग्रेस मीन्स कृपा, देन मीन्स अपेक्षा, गिफ्ट्स के लिए, लैंड मैंने लेने के लिए। तो भगवान से उसको उपहार नहीं चाहिए, बल्कि भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए वह उसकी प्रार्थना या उसकी पूजा करता है। हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे, जो जिसका मनोरंजन होता है हार्मलेस डे, नुकसान न पहुंचाने वाले दिन में, यानी उसने किसी को दिन भर में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है, और ऐसा वो मनोरंजन करता है, और मनोरंजन का जो साधन उसके लिए पास है वो वेल चूजन बुक, वो है अच्छी प्रकार से चुनी हुई पुस्तक और फ्रेंड या कोई मित्र। तो मित्रों के साथ समय गुजारता है या बहुत अच्छी सी किताब चुन करके उसको पढ़ने में वह अपना टाइम पास करता है। ओके, हियर द लास्ट स्टेंजा। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, ये व्यक्ति दासता वाले बंधनों से मुक्त है, यानी किसी का दास नहीं है, किसी बंधन में बना हुआ नहीं है। ऑफ होप टू राइज, इसको ऊंचा उठने की आशा नहीं है, और फियर टू फॉल, और ना इसको नीचे गिरने का डर है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, अपने आप का स्वामी है, स्वयं का स्वामी है। दो नॉट ऑफ लैंड्स, भले ही भूमि का स्वामी ना हो, अर्थात उसने भूमि इकट्ठा नहीं की है, बहुत जमीन उसके पास नहीं है, लेकिन वह अपने आप को अपना स्वामी समझता है। एंड हैविंग नथिंग ही एट ऑल, और उसके पास कुछ भी नहीं है फिर भी उसके पास सब कुछ है। स्टूडेंट्स, यहां पर भी एक फिगर स्पीच यूज किया गया है, और वह है, गैस कीजिए, हैविंग नथिंग ही एट ऑल, कुछ ना होते हुए उसके पास सब कुछ है। दिस इज एन एसोसिएशन ऑफ टू वर्ड्स हैविंग अपोजिट मीनिंग्स, ये एक इसमें अपोजिट वर्ड्स यूज किए गए हैं। कुछ ना होते हुए उसके पास सब कुछ है,
तो यहां पर ऑक्सीमोरोन का प्रयोग हुआ है. Okay students, this was the first poem, Character of a Happy Life. Now you have to learn the difficult words, and I am sending you some pics or related to these difficult words which will be very easy for you to understand. Next week I will tell you its central idea and then explain also. Till then, enjoy yourself. Have a good day.